اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا. اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ. تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی. لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہیں لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے. وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے. کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. بولے آؤ باللہ. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو اس کو. اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی. آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے. تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا وسیلہ کے متعلق یہ بات بیان کر رہا ہے. 5 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ غلط بیان کر رہا ہے. ابن ماجہ میں جو واقعہ ہے 1385 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا تو اس نے دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے، اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی. یہ ابن ماجہ کا واقعہ ہے 1385 نمبر حدیث. اور یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے طبرانی کا 8311، یہ واقعہ اور ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، جو ابن ماجہ میں راوی ہیں صحابی، وہی کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا، تو آپ میری سفارش کریں. تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، یہ دعا پڑھو. تو اس ساتھی نے ایسا ہی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور یہ دعا مانگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے والی. تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، اس کا کام ہو گیا. وہ آیا آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے میری سفارش کی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے انہیں یہ دعا سکھائی. تو یہ واقعہ ہے طبرانی میں اور اس نے غلط بیان کی ہے. اچھا، دوسرا کہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس ان سے روایت کرے تو وہ حدیث نہیں مانی جائے گی، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. پیٹ رول ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ پیٹ رول نہیں ہے. یہ رول کیا ہے محدثین کا؟ یہ کتاب ہے آپ کو نظر آ رہی ہے طبقات المدلسین.
ये इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। मुदल्लिसीन के बारे में शुरू में लिखते हैं मुकदमा में कि मुदल्लिसीन की 5 तबके हैं, पहला तबका, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। फरमाते हैं पहले तबके वाला, उसमें वो लोग बहुत कम तदलीस करते हैं। मुदल्लिस ये होता है कि अपने उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम ले, तो उसे कहते हैं मुदल्लिस। तो पहला और दूसरा तबका जो है वो अनस रिवायत करते हैं, इसलिए उनकी हदीस मानी जाएगी चाहे वो अनस रिवायत करें, इसलिए कि वो बहुत कम तदलीस करते हैं और बहुत बड़े इमाम हैं। जो तीसरा तबका है उसके लिए समाअत की तसरीह होना लाजमी है। वो अन से करें तो उसके लिए कोई ऐसी और सनद मिले जहाँ हदसनी या अखबरनी के अल्फाज मौजूद हों। यानी ये रूल है कि मुदल्लिसीन के 5 तबके हैं, पहला और दूसरा तबके वाला अन से रिवायत करें तब भी उनकी हदीस मकबूल होगी, मानी जाएगी, इसलिए कि बड़े मुहद्दिस हैं और वो बहुत कम तदलीस करते हैं। अब आइए अब्दुल्लाह बिन वहाब को इन्होंने ज़ईफ़ कहा कि वो अन से रिवायत करते हैं। अब्दुल्लाह बिन वहाब को इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब में तबक़ातुल मुदल्लिसीन में पहले तबके में लिया है और नंबर उसका है 17। अब्दुल्लाह बिन वहाब मिस्री अल फ़क़ी अल मशहूर अल मरतबतुल ऊला। तो मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन वहाब अगर अन से रिवायत करे तब भी उसकी हदीस सही होगी, इसलिए कि पहले तबके का ये मुदल्लिस है और ये बहुत कम तदलीस करता था। इसलिए मुहद्दिसीन ने उसूल बनाया कि पहला और दूसरे तबके वाला अन से रिवायत करें तो उनकी हदीस सही मानी जाएगी। इसने क्या कहा जी, अन से रिवायत करने वाले की किसी की भी रिवायत मकबूल नहीं होगी और समाअत की तसरीह होना मौजूद होना लाजमी है। वो भी हम मान लेते हैं। अब्दुल्लाह बिन वहाब से समाअत की तस्रीह मौजूद है। वह हदीस में आपको दिखाता हूँ, मारफतुस सहाबा li अबी नुआइम, हदीस आपके सामने 4928। उसमें वही हदीस है, वो जो वाक़या मैंने आपको सुनाया तबरानी से। हदसना अबू आमर हदसना हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना इब्न वहाब अखबरनी अबू सईद, कि हमें ख़बर दिए अबू सईद ने। तो ये इब्न वहाब यहाँ उनकी समाअत की तस्रीह मौजूद है। और दूसरी किताब कौन सी जिसमें उन्होंने एतराज़ किया वो ये है आपके सामने, तबरानी में। इसमें है हदसना ताहिर बिन ईसा बिन कैरस मिस्री अल मुकरी हदसना असबग बिन फर्ज हदसना इब्न वहाब अन अबी सईद। अब यह उसने एतराज़ किया कि इब्न वहाब जो अब्दुल्लाह बिन वहाब वो अन से रिवायत करते हैं, ये मुदल्लिस हैं, तो इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। पहली बात ये कि पहले तबके के मुदल्लिस हैं, इब्न हजर अस्कलानी ने इसकी तशरीह फरमा दी है। तो पहले तबके वाला अन से रिवायत करे तब भी उसकी हदीस मकबूल होती है। लेकिन फिर भी हम आपको इसकी समाअत की तशरीह जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो किताब आपके सामने है, मारफतुस सहाबा li अबी नुआइम, हदीस नंबर 4928। हदसना अबू अमर हदसना अल हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना इब्न वहाब अखबरनी अबू सईद। इसको कहते हैं समाअत की तशरीह मौजूद होना के सराहत के साथ उन्होंने सुना अबू सईद से। तो वहाँ था इब्न वहाब अन अबी सईद, तो इसलिए उस पर एतराज़ किया। अब समाअत की तशरीह मौजूद है, यह हदीस हर तरह से ये सही है। तो इस मौसूफ़ को ख़ुद पता नहीं है और कह रहा है पेट रूल है, पेट रूल का कोई पता नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि रूल क्या है। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके 5 मुदल्लिसीन के तबकात बनाए। पहले तबके का ये मुदल्लिस है, तो अन से रिवायत करे तब भी इसकी हदीस मकबूल है। और उसके बावजूद मैंने आपको दिखाया कि समाअत की तशरीह मौजूद है। अब इसने जो कहा कि मैं इल्म कलाम से मैं इनको फ़क़ी दे रहा हूँ, जो अब इसको फ़क़ी मिलने वाली है। पहली बात तो ये जो इसने ये बात कही कि वो जो हदीस इसने सुनाई कि अन हसन जो है वो मुदल्लिस अन से रिवायत कर रहा है, अगर आप उस हदीस को सही मानते हैं तो फिर इसको माने। फिर आगे वो कहता है बेईमान हो जाएं। उस हदीस को अलबानी ने सही कहा है, जिसके बारे में ये कह रहा है कि अगर उसको हदीस को आप सही मानते हैं तो फिर इस हदीस को सही माने जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के बारे में इस तरह कि आप ऐसा कह नहीं सकते, उस हदीस को अलबानी ने सही माना है। तो फिर आप कहें कि अलबानी बेईमान है। इसी तरह बहुत सारे और मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने उस हदीस को सही माना है। अब आते हैं इस पर कि अगर मुदल्लिस की अनस की रिवायत आपने माननी है तो फिर उस हदीस को भी सही माने जो हसन बसरी से रिवायत है, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अल्फाज हैं जो आपके बारे में से नहीं कहे जा सकते। इसने यही बताया कि अगर आप अन वाली रिवायत मानते तो फिर उसको भी सही माने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ख़ुद ये अन वाली रिवायतें इसने अपने रिसर्च पेपर में डाली हुई हैं और आमिश मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है। उसके बावजूद ये कहता है कि ठीक है जी,
किसी एक ने तो सही कहा होगा ना, सब ने ज़ईफ़ नहीं कहा। तो अब इसका रूल याद रखिए कि ये कहता है कि अगर आप आने वाली रिवायत तबरानी वाली सही मानते हैं तो फिर उसको भी सही माने जो हसन बसरी से, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात है जो मुनासिब नहीं है। अब देखिए खुद ये आने वाली रिवायत को लेता है और बहाना क्या बना रहा है। भाई आपने अक्सर काफ़ी दफ़ा आप 5B जो अपना रिसर्च पेपर है वो अक्सर दिखा रहे होते हैं, एतराज़ ये भी आता है उसमें ज़ईफ़ रवायतें डाली हुई हैं आपने। ज़ईफ़ रवायतें, हम ये कहते हैं कि इस 5B रिसर्च पेपर में कोई एक रवायत ऐसी दिखाएं जिसको दौरे हाजिर में किसी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो कि मैंने इल्म को एक जगह यकजा किया। कई हदीसें शेख अलबानी के नजदीक और इमाम तिरमिजी के नजदीक सही है। मसलन वो जो रवायत है कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नथनों में सांप घुस गया, इसको इमाम तिरमिजी ने लिखा है कि हदीस सही है, इमाम तिरमिजी ने और शेख अलबानी ने भी। शेख जुबैर साहब कहते हैं ये तदलीस की वजह से ज़ईफ है। तो चूंकि जो अलबानी साहब और इमाम तिरमिजी की तहकीक के ऊपर लाए करते हैं, हम उनसे तो ये नॉलेज नहीं खींचना चाहते। इस तरीके से शेख जुबैर साहब की कई रवायतें तहकीम वाली सही हैं, उसको अलबानी साहब ज़ईफ कहते हैं, उस हिसाब से तो मुझे वो भी निकाल देनी चाहिए। तो हमने ये किया था, ये मुझे सारी चीजें पता है। हम ये कहते हैं इस पॉम्फलेट में 200 रवायतें, कोई एक रवायत ऐसी बताए जिसको बिल इजमा तमाम मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा हो, किसी ने सही कहा होगा। हमने नॉलेज एक जगह जमा की। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि हमें सब मालूम है, उसको इमाम तिरमिज़ी ने भी सही कहा है, अलबानी ने सही कहा है, लेकिन ज़ुबैर ज़ई ने मुदल्लिस अन से रिवायत करता है, इस वजह से उन्होंने उसको ज़ईफ़ करार दिया। चूँकि हमने इल्म को जकजा किया है, वहाँ आप कह रहे हैं कि अन से रिवायत करें तो फिर आप वो भी हदीस मान लो हसन बसरी वाली और हो जाओ बेईमान। अब यहाँ कहते हैं कि हमने इल्म को यकजा किया है, ये कैसी दोगली पॉलिसी। अब ये हदीस आपके सामने है, इसने अपने रिसर्च पेपर में डाली है, तिरमिज़ी में 3780 नंबर, और इसको ज़ुबैर ज़ई कहते हैं ज़ईफ़ है, इसलिए कि इसमें 2 मुदल्लिस हैं, अबू मुआविया और आमश, इसलिए ज़ईफ़ है। वो अन से रिवायत करता है। देखें, हदसना वासिल इब्न अब्दुल आला हदसना अबू मुआविया अनिल आमश अन अमारा। अबू मुआविया भी मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, आमश मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है। 2 मुदल्लिस हैं जो अन से रिवायत कर रहे हैं। तो अब यहाँ अन वाली रिवायत ले रहा है, तो अगर ये ले रहा है तो फिर ये भी बेईमान हो जाए, जिस तरह दूसरों के लिए कहता है कि हसन बसरी वाली हदीस को मान के हो जाए बेईमान, तो ये खुद भी फिर बेईमान हो जाए। एक मर्दा खुद वो लफ्ज़ सुनिए इसके। उसमें इसी तरह की एक हदीस मैंने ज़ईफ़ करार दी थी मुहद्दिसीन के असूल पर, जो मुस्नद इमाम अहमद में भी है और अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की उसमें भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, रवायत ज़ईफ़ है, मतलब वो इसी तरह। और ना इमाम बुखारी ने इसको ज़ईफ़ लिखा, ना इमाम अहमद बिन हंबल ने, लेकिन हदीस ज़ईफ़ है अल अदबुल मुफरद में, सही बुखारी में नहीं है। कि जो शख्स अपने जहलियत के नसब पर फख्र करे कि मैं फलां चौधरी साहब का बेटा हूं, मेरा बाप तो इतना बड़ा एक खानदानी उसका ये स्टेटस था, तो उसको कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासल काट के अपने मुंह में रख ले, बोले आओ। और ये बात किनारे से न करना, डायरेक्ट को उसको। अब इतनी बेहुदा बात क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा सकते हैं? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फायज। और सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्म हया मौजूद थी। आप ये बात इरशाद फरमाएंगे कि अपने बाप का उज़्वे तनासल काट के अपने मुंह में रख लो, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। इस हदीस में हसन बसरी मुदल्लिस हैं, वो अन से रिवायत कर रहे हैं। तो जिसने इस हदीस को ठीक मानना है तबरानी वाली को, फिर इसको भी सही माने। तो मैंने ये इल्मुल कलाम से भी मंतकी, जिसको पंजाबी में फकी कहते हैं, वो भी मैंने देखा। जी दोस्तों, क्या कहा इसने कि अगर आप आने वाली रिवायत तबरानी वाली सही मानते हैं, तो जिसके बारे में मैंने कहा है कि तबरानी की हदीस जो है वो सही है, इसलिए कि वो अब्दुल्ला बिन वहाब पहले तबके का मुदल्लिस है, और नंबर 2 समाद की तसरीफ मौजूद है। कहता है कि अगर वो अन वाली सही मानते हैं तो फिर ये हसन बसरी वाली भी आप सही माने, तो हमारी तो हदीस हर लिहाज से सही है। अब आपने जो हदीस ली है तिरमिज़ी शरीफ 3780, उसमें अबू मुआविया भी मुदल्लिस है, अन से रिवायत करता है, आमश भी मुदल्लिस है जो अन से रिवायत करता है। तो फिर आपने ये हदीस लेके फिर आप भी हो गए बेईमान। यानी ये किस तरह की दोगली पॉलिसी है। एक तरफ आप नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले के इतने मुखालिफ हैं कि आप सही हदीस को भी जो है वो आप ज़ईफ़ करते हैं, मौजू करते हैं, और दूसरी तरफ वही आपका जो कानून है वो फेल हो जाता है।
دوستو آپ کو معلوم ہوا کہ وسیلے والی حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا جو قانون ہے وہ اس کے گلے کا پھندا بن گیا، خود اپنے قانون کے مطابق یہ بے ایمان ٹھہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔